8 years old, Premi Gravida at 16 weeks for booking visit. She's a known case of bipolar depression and control on lithium. She stopped it since pregnancy confirmed. So examiner have some questions. Question number 1. What history points you will take from the patient to plan her antenatal management? जी उज़मा. Uzma? Patient, I will take the focused history regarding her disease. So her duration of her disease, when it was diagnosed, she has last visited to her psychiatrist or not, and any symptoms she has experienced like delusion, hallucination, and other symptoms she has bipolar disorder. So when she was diagnosed, and what medication under dosage of the lithium medication she is taking, as she has a 16 weeks gestation, she has visited to her psychiatrist for the opinion of that, and then as she is taking the folic acid supplementation or not, and I will also ask about her other medical condition like hypertension, including her blood pressure is raised or not, and diabetes, and asthma, and any history of epilepsy, and thyroid disorder, and family history of any neurological deficit in her family or not. Okay. And history of consanguineous marriage in with her or not, and history of drug allergy, and history of personal history of smoking, any addiction, and I will also ask about her deprivation is there or not, and then I will ask about the socioeconomical history. Vaginum or any vaginal discharge, and excess nausea and vomiting. Sorry, I have forgotten this. First trimester, and she has known her blood group or not, and then she has ultrasound done report or not, and she is booked herself to her for the antenatal visit when she was booked, and then after that I will proceed for the examination. Height and weight to calculate her BMI. Dr. Naila, stop, please stop. Questions जितना पूछा है उतना बताएं. Yes. जी, the next question. Yes. The next question from Dr. Tabinda. Patient stopped lithium by herself to avoid harm to the baby. Now, what your advice will be to the patient regarding lithium? Dr. Tabinda, unmute yourself. For you. If the patient was using lithium to control her bipolar disorder or the condition mental health, so I want to ask the patient about now how she is feeling now, if she has any symptom hallucination or any low mood swings. So if the patient is controlled without lithium, so it's good, and because lithium can cause the congenital heart disease in baby, but if her condition is not controlled without lithium, so she can continue her lithium in a low dose, and I will liaise on with the mental health team and the mental health specialist to review her medication, as her mental condition or bipolar disorder would have more side effects and harm to the baby as compared to the low dose of the lithium. So I will outweigh the risk and benefit of the lithium at this age of gestational age of the pregnancy, and I will manage accordingly to her condition. The next so question, if her condition is not controlled, so she can continue lithium in low doses. Okay. What question number 3 is that what antenatal plan
you will give to your patient? Antenatal plan. The antenatal plan for this patient is, I will ask the patient that either she conceived after with liaison with the mental health specialist doctor or not, and when she had last checkup with the doctor, and if she conceived after the advice of the doctor, of the psychiatrist, so she should start folic acid 5 milligram till 12 weeks. Tabinda, she is at 16 weeks and you have to give antenatal plan. You have not asked about the history. Okay, so she is 16 weeks. So I will ask the patient to have the congenital anomaly scan at the 18 to 20 weeks, and the adjustment of the lithium. If now her condition, her mental health condition, and whether she required lithium or not, and I want to liaison with the psychiatrist also. Okay. The next question from Dr. Naila. Dr. Naila, unmute yourself. Tabinda, mute कर लें. Dr. Naila, Yes, sir. patient was put on lithium. What precautions you will advise to your patient to avoid the toxicity? Yes, sir. डॉक्टर मैं क्वेश्चन पूछ लिया है. शी वाज पुट ऑन लिथियम. व्हाट प्रिकॉशंस? Ma'am, I will. Yes. In collaboration with. Is the lithium is the mode stabilizer, but second drug, that is the lamotrigine, we can offer the patient with a collaboration with a psychologist, that is the safe for the pregnancy. So we can switch the patient to the lamotrigine. That is also the mode stabilizer. So I will continue my patient with. I will counsel the patient in an empathic way, and I will. Dr. Naila, continue her antenatal Dr. visits Naila, along Dr. with Naila, the psychologist. स्टॉप. क्वेश्चन ma'am. गौर से सुने. क्वेश्चन प्लीज गौर से सुने. अगर क्वेश्चन देखें, मैंने कहा है कि यू हैव पुट द पेशेंट ऑन लिथियम. व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेल टू योर पेशेंट? क्वेश्चन गौर से सुना करें. पता है ना आपका ये मसला है. प्लीज. ओके. ठीक है सही है. Precautions, Yes. Ma'am, I will counsel the patient regarding the side effects of the lithium. So if she is taking in a low dose form, so she used the folic acid supplementation throughout the pregnancy, and she should advise for the anomaly scan at 20 weeks and echocardiography at 24 weeks of the gestation for the fetal congenital heart disease, and after that she needs the serial of the growth scan from the 24 to 26 weeks of the gestation, and then she may need for the Doppler ultrasound for the baby, and then she should advise to, if she is taking the smoking or any other drug, she can stop the smoking, and otherwise she is advised for the healthy lifestyle and diet and iron and folic acid supplementation also. Okay, very good. So Dr. Tabinda, name some mood stabilizers. डॉक्टर नाइला म्यूट कर लें. नेम ऑफ द सम मूड स्टेबलाइजर्स. डॉक्टर Ma'am, I don't know. Sorry. Okay, it's okay. Dr. Rajda, unmute yourself. Name of mood stabilizers. No? So, डॉक्टर फाइजा क्या पूछा आपने? क्वेश्चन नहीं समझ आया. डॉक्टर हम ना क्वेश्चन बता दें डॉक्टर फाइजा, क्या पूछा आपने? नेम ऑफ मूड स्टेबलाइजर्स. एक तो लिथियम है और एक सोडियम वेलप्रेट है. वेरी गुड. डॉक्टर किसी का माइक अनम्यूट है या शायद आप में से ही आवाज आ रही है? हम ना. ओके, सो व्हाट टेल मी द टॉक्सिक लेवल ऑफ द लिथियम. ये नहीं पता डॉक्टर फाइजा. ओके गर्ल्स, म्यूट. Ma'am, 0.1.
0.1 to 1 is the window of the toxic level of medium lithium, and it's very narrow. 0.2 Is it? it is therapeutic level. It is the 0.1 is the therapeutic. 0.1 to 1, हाँ I guess. 0.1 to 1 is therapeutic level. More than 1.2 millimole is toxic level. ओके चलें, मैं अब आप लोगों को ये करा रही हूँ, म्यूट योर सेल्फ एंड उज़मा और डॉक्टर राजता गेट एंड थर्ड वन किसी से भी मैं पूछ लूँगी विच दोज हु आर फ्रॉम पेड ग्रुप दे शुड बी अटेंटिव. इसको मैं रोल प्लेयर के उस तरह करवाऊँगी, बट ये जो भी मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ ये गौर से सुनिएगा. रोल प्लेयर में यही चीज़ें आपने उर्दू में बोलनी है. ओके सो द सिनेरियो इज़ patient 28-year-old 16 weeks for booking visit and she came primary gravida known case of bipolar disorder controlled on lithium. Be attentive, जिसको जहाँ से जो समझना है एक्टिव इन द चैट बॉक्स. दरमियान में माइक नहीं अनम्यूट करना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है. नॉन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर कंट्रोल ऑन लिथियम. शी स्टॉप्ड इट since pregnancy was confirmed. So question number 1 is what history points you will take from the patient to plan antenatal management. So you will ask about after introduction and greeting. Madam, I will ask about the missing details of my patient, since how long she is married for. I will ask about her bipolar disorder on its onset, duration and severity. Last visit to her psychiatrist, its medication, dose and compliance. I will ask the screening questions for psychiatric illness. Which one are how is his mood, her mood? Is there any loss of appetite, loss of sleep and loss of interest, and abnormal thoughts of self-harm or harm to the other, particularly in the last 4 weeks, suicidal attempts or thoughts. These were the question history points. Madam, then I will ask about her pregnancy. Is she conceived spontaneously or by medication? Now the leading question was that she is for booking visit at 16 weeks. So you will ask from the patient why she is so late for booking. Is there any history of lack of support from the husband, any negligence at home or domestic violence? This was the question for passing the candidate. ठीक है, आप रिपीटेडली जब सिनेरियोज करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है. एंड देन आई विल मैडम आस्क अबाउट द any baseline investigations or then complete the history template. Most importantly, the family history of mental disorder, any drug, alcohol or smoking history, past medical, surgical and gynecological history, drug allergy. These were the history points. Now question number 2, patient stop lithium by herself. अब उसने छोड़ दी थी to avoid the harm to the baby. आपकी एडवाइस क्या होगी? My advice will be that, madam, the lithium cause cardiac anomalies in the baby, which is Epstein anomaly. What is Epstein anomaly? Epstein anomaly is congenital heart defect in which septal and posterior leaflet of tricuspid valve are replaced towards the apex of right ventricle. Septal and posterior leaflet of tricuspid valve are displaced towards the apex of the right ventricle. So I will counsel about the, ये मैंने दरमियान में इसलिए बताया कि आजकल एग्जामिनर्स क्वेश्चन आंसर मोड में चले गए हैं. So I will counsel about the lithium toxicity, okay, and it can cause cardiac anomaly in the baby, but I will counsel her that stopping lithium cannot 100% confirm that baby will not have any cardiac problem, and she can also face increased relapse. If she use lithium, I will counsel her about anomaly scan and fetal echo,
and counsel about the monitoring of lithium level 4 weekly till 36 weeks and then weekly till delivery. I will involve the mental health team to decide the use of lithium or any other antipsychotic. This was the question number 2. And now the question number 3. The question number 3, what antenatal plan, question ध्यान से सुना करें, what antenatal plan you will give to the patient. एंटीनेटल प्लान में आपने एंटीनेटल देना ना, हिस्ट्री नहीं पूछनी. यू विल टेल द पेशेंट दैट दिस इज़ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इट विल बी monitored in consultant-led unit with MDT including senior obstetrician, psychiatrist, psychologist, perinatal health team. Okay, frequent antenatal visits will be required. Baseline investigation अब चूँकि उसकी नहीं हुई थी तो आप सेंड करेंगे ना. अब baseline investigation will be sent like CBC, HIV आपने पूरा बोलना है अगर टाइम हो तो, otherwise baseline investigation. Syphilis, HIV, hepatitis B, urine complete, quadruple test for the down screening. ओके, ये जेन में रखें. 16 वीक्स है quadruple test. Anomaly scan at 18 to 22 weeks. अब आप 16 वीक्स से ऑनवर्ड चलते रहे ना, स्लो with fetal echo. Growth scan from 26 weeks till 36 weeks. Lithium, if lithium is started, then monitoring of lithium level. 4 weekly till 36 weeks, then weekly till delivery. MDT will be arranged at 32 weeks. Okay, which will include the family also to discuss the perinatal management. If this team decides that this patient is at increased risk of mental crisis during antenatal period, so I will admit the patient till delivery from 32 weeks. Okay, I will stop the lithium at the time of delivery or before delivery. Avoid dehydration during labor, continuous CTG, epidural analgesia. My aim will be to deliver the patient vaginally. Postnatal involvement of psychiatrist and perinatal health team will be important. Next pregnancy will be planned and pre-pregnancy counseling should be done. Optimize her health condition, mental health condition before pregnancy on safe medication. दिस वॉज द एंटीनेटल प्लान. एंटीनेटल प्लान में डिलीवरी करके अगली प्रेगनेंसी तक जाना होता है साइकेट्रिक मेडिकल डिसऑर्डर्स में. नाउ द क्वेश्चन वाज, पेशेंट वाज पुट ऑन लिथियम, व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेल टू द पेशेंट. ओके, सो आई विल टेल दैट दिस हैज़ नैरो थेराप्यूटिक रेंज. लिथियम की नैरो थेराप्यूटिक रेंज है, which means a small increase in dose can cause toxicity. Okay, toxic level I am telling you in extra that more than 1.2 millimole per liter toxic level. And lithium toxicity can be presented with nausea, vomiting, diarrhea and neuromuscular sign and symptoms. Okay, so if she feels nausea, vomiting, diarrhea, she should report to the physician or gynecologist. Okay, so I will also tell the patient that at the end of the pregnancy the dose can be increased. क्यों? Because the plasma volume is increasing at the end of the pregnancy and dose can be insufficient, routine dose. So lithium will be stopped before delivery, and after delivery breastfeeding will be not advised to the patient if lithium is restarted. After 12 hours of delivery, madam, I will also measure the lithium level. Postnatally, perinatal health team and psychiatric involvement. Preconceptional counseling. So what are the mood stabilizers? These are lithium
Antipsychotics, which are olanzapine, risperidone, and quetiapine. And anticonvulsants, which are valproic acid, lamotrigine, and carbamazepine. So that's all. This was the structured discussion. Is primary gravida with history of bipolar disorder at 16 weeks. Came with sister. She stopped lithium when she conceived. She stops lithium. She came with her sister with complaint of aggressive attitude and disordered speech. Okay, now proceed. वालेकुम सलाम. मेरा नाम डॉक्टर समरीन है। मैं आज आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। आपसे आपके मसले के मुतालिक बात करूँगी। अच्छा, मुझे जो मालूमात दी गई है क्या अच्छा, जैसा कि आप अपनी बहन को लेकर आई हैं जो कि प्रेग्नेंट है और वो मतलब उनको पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है और अब उन्होंने लिथियम लेना छोड़ दी है। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? और अब उनको मसला हो रहा है, मतलब डिसओरिएंटेड है, वो एग्रेसिव है और थोड़ा बातों में भी स्पीच है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये तो काबू ही नहीं आ रही डॉक्टर। हम बहुत थक गए हैं डॉक्टर, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप परेशान मत हो। हम पूरी डॉक्टरों की टीम मिलकर अभी इनको देखेंगे, इनका मुआयना करेंगे। जैसा कि इन्होंने अपनी मर्जी से दवाइयाँ छोड़ी हैं तो इनको हम अभी एडमिट करेंगे। ठीक है जी डॉक्टर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से बताइए कि क्या इनके हस्बैंड के साथ रहते हैं? जी डॉक्टर, ये साथ ही रहते थे। सपोर्टिव हैं इनके साथ? डॉक्टर अभी इतने सपोर्टिव नहीं है। जब से प्रेगनेंसी हुई है ना, वो मेरे पास छोड़ गए हैं। तो पहले तो बहुत सपोर्टिव थे, अब इनकी हालत बुरी हो गई है, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। तो आई डोंट नो, पहले तो सपोर्टिव थे। अच्छा, इन मतलब उन्होंने बिल्कुल भी इनका ख्याल रखना छोड़ दिया, इसलिए ये मतलब इन्होंने अभी तक बुकिंग विजिट भी नहीं की है? नहीं डॉक्टर, बुकिंग विजिट का तो मैं इनको कहती रही हूँ, ये आती नहीं थी। ये कहती थी मैंने नहीं जाना। अच्छा जी ये प्रेगनेंसी में मेरे पास ही है। अच्छा, और क्या इन्होंने इनकी प्रेगनेंसी प्लान थी कि अनप्लान थी? मतलब ये चाह रही थी? जी हम चाह रही थी डॉक्टर, पहला बच्चा था इनका है यानी कि, और शादी को 3 साल हो गए थे। तो लेकिन ये है कि हाँ जी, ये हमल तो चाह रहे थे। तो इन्होंने प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ली थी? हमल करने से पहले ये गई थी डॉक्टर के पास? क्योंकि इनको पहले से ये दिमाग का मसला है, नफ्सियाती मसला जो है। जी डॉक्टर, ये तो उन्होंने इजाजत दी थी प्रेगनेंसी करने की? डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन आई थिंक कि इन्होंने हमल का 2 महीने पहले चेक कराया था डॉक्टर, और हमल का मुझे नहीं पता उन्होंने कंफर्म उनसे पूछा था या नहीं। अच्छा, तो अभी इन्होंने क्यों दवाइयाँ लेना छोड़ दी हैं? जो लिथियम ले रही थी, अभी क्यों स्टॉप की है इन्होंने? ये कॉन्शियस थी कि बच्चे को कोई मसला ना हो जाए, तो ये बड़ी खुश थी कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि 3 साल बाद अल्लाह पाक ने खुशखबरी सुनाई है ना। अच्छा, तो अभी इन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है आप लोगों ने इनका? डॉक्टर, मैं लेके इनको मुश्किल से आई हूँ, देखें 4 बंदों ने अभी भी इनको पकड़ा हुआ है, तो अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, मुश्किल से मैं लाई हूँ डॉक्टर, आपकी सोच है। रास्ते में भी इन्होंने चीज़ें तोड़ दी थी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने। ओहो, अच्छा, देखें हम अभी इनको अपने जो पेरीनेटल हमारा वार्ड है साइकेट्रिक, इसमें हम अभी इनको एडमिट करते हैं, ठीक है? और हम अपने डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होंगे, साइकेट्रिस्ट भी होंगे, हमारे सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे, वो मिलकर इनका मुआयना करेंगे और फिर हम इनको दोबारा इनकी दवाइयाँ स्टार्ट करवाएंगे साइकेट्रिस्ट के मशवरे से, ठीक है? और मुझे थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स चाहिए कि आपके खानदान में किसी को है ये बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला? जी डॉक्टर, मेरे फादर को था बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला।
अच्छा, ठीक है। और ये पहले ये कोई ड्रग एडिक्शन की कोई हिस्ट्री तो नहीं इनकी, मतलब कोई अल्कोहल, कोई नशावर अद्वियात इस्तेमाल नहीं करती थी? डॉक्टर ये ना कॉलेज लाइफ से इनको ये मसला है, तब इन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी लड़कियों के साथ मिलके ना। अच्छा, तो अभी भी करती हैं? डॉक्टर अभी तो नहीं, अभी इन्होंने कम कर दिया, लेकिन ये 5 दिन से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही। जी अच्छा, और किसी दवाई से कोई एलर्जी है इनको? नहीं डॉक्टर। अच्छा, कभी कोई ऑपरेशन हुआ है इनका? नहीं डॉक्टर। और गुजारा इनका ठीक हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है इनको हस्बैंड की जी तरफ जी से? डॉक्टर, हस्बैंड बिजनेसमैन है, बट वो ना इनकी बीमारी में कोऑपरेट नहीं कर रहे। असल में वो भी परेशान हो गए हैं कि क्या हो गया है। हम खुद भी परेशान हैं डॉक्टर। अच्छा। हाँ जी, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ। ये तो पता नहीं, इनका बस चले तो किसी को कत्ल ही कर दें। जी ओहो, अच्छा। देखें, जैसा कि आपने मुझे जितना इनके बारे में बताया है, मैं अब इनका मुआयना करूँगी, ठीक है? जिसमें इनके हम आप तो बता चुकी हैं, लेकिन हम एग्ज़ामिनेशन में भी देखेंगे कि इनकी मेंटल स्टेटस कैसी है, इनसे ओरिएंटेड है टाइम्स प्लेस एंड पर्सन में क्या नहीं। अच्छा, और फिर हम इनके कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे और फिर जो है ना हम इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे। जैसा कि इनका बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड है, तो इसके लिए हम इनको मतलब घर नहीं भेज सकते वापस, ये हमारे साथ वार्ड में ही रहेंगी। हम इनको एंटी साइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन स्टार्ट करवाएंगे जो कि इनके लिए सेफ होंगी, ठीक है? और साथ में हम इनके बेबी और इनको मॉनिटर करते रहेंगे। हम इनका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे ये देखने के लिए कि मतलब एक बच्चा है या एक से ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, और क्या मतलब एनॉमली स्कैन करेंगे देखने के लिए कि क्या बच्चा ठीक है, उनमें कोई, जैसे इन्होंने लिथियम ली है जिसमें बच्चे में कार्डिक एनॉमलीज होने के भी खदशे होते हैं, तो एनॉमली स्कैन करके देखेंगे कि बच्चे में कोई मसला तो नहीं है। और फिर हम इनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, एंटीनेटल पूरी टीम मिलकर, और इनकी काउंसलिंग भी करेंगे। जब इनकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, इनको हम फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, और फिर डिस्चार्ज करने के बाद हम इनको फॉलोअप्स पे बुलाएंगे। 26 से 28 हफ्ते, मतलब 26 हफ्ते के बाद हम इनके फिर बच्चे के लिए ग्रोथ स्कैन्स करेंगे, और 32वें हफ्ते पे फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर इनका मतलब पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो है और डिलीवरी का प्लान 36 वीक्स पे बनाएंगे कि इनकी डिलीवरी कहाँ पे होगी। एक कंसल्टेंट लेड यूनिट में इनकी डिलीवरी होगी, जैसा कि एक हाई रिस्क केस है, और हमारा जो है एम होगा वो वेजाइनल डिलीवरी होगी। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हुई, बच्चा और माँ की सेहत अगर ठीक रही, और डिलीवरी के दौरान हम इनको 1-to-1 केयर देंगे, बच्चे की दिल की धड़कन चेक की जाएगी, और बच्चे के पैदाइश के बाद भी हम इनको मदर बेबी यूनिट में रखेंगे, और हम सुपरविजन में मतलब देखेंगे कि मेक श्योर करेंगे कि माँ जो है ना बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसको उनको ब्रेस्ट फीडिंग का बताएंगे, कंट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे, और चूंकि ये इनको पहले से बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला है, तो ये मतलब इनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी रिकरेंस के चांसेस हैं, तो अगली प्रेगनेंसी से पहले फिर हम इनको एडवाइस देंगे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की। और ठीक है डॉक्टर, ठीक है, इस ठीक तरह है, से। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर जी, समझ आपको समझ आ रही है मेरी बातें? जी जी समझ तो आ रही है डॉक्टर। तो अब हम एडमिशन बनवा लें? जी जी जी, आप अभी एडमिशन करवा लें। ठीक है डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर समरीन, इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। कुछ पॉइंट्स आपने मिस किए हैं, सो वो मैं रिपीट कर देती हूँ, आप म्यूट कर लें। सो द पेशेंट वाज, गर्ल्स ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। 28-year-old came to you at 16 weeks for booking visit. She is a known case of bipolar disorder which was controlled on lithium. She stopped it since pregnancy was confirmed. Now she came with her sister with the complaint of aggressive attitude and disordered speech. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा है और मुझे बताया गया है कि आपकी बहन का पहला हमल है और 16 हफ्ते का हमल है, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा हैं। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और ये लिथियम ले रही थी जो कि इन्होंने हमल के दौरान छोड़ दी। क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? जी आपकी मरीज़ का नाम क्या है?
आपके साथ आपकी बहन का क्या नाम? ठीक है। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपकी बहन है इस टाइम बहुत एग्रेसिव, इनको ये मसला कब से है? ठीक है, अभी मैं पेरीनेट मेंटल हेल्थ टीम को कॉल करूँगी, हमें आपके मरीज़ को दाखिल करना होगा। ठीक है, पहले ही दाखिल कर देना, वो चीज़ें तोड़ फोड़ या वेट तो नहीं करेंगे। तो हम मेंटल हेल्थ टीम को कॉल करते हैं, वो आके इनको एडमिट करेंगे ताकि इनकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। और इनकी बीमारी के लिए मुझे आपसे कुछ सवालात करने होंगे। ठीक हो गया? ये होती है सिचुएशन अवेयरनेस। आप वहाँ वार्ड में पहुँच गए हैं, आपके जहन में ये सीन चल रहे हैं। अभी आप मुझे इनकी बीमारी के बारे में बताएंगी सारा, इनको ये मसला कब से है? अच्छा, आपकी फैमिली में किसी को ये मसला, किसी और को कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ था जिसके बाद इनको दिमागी मसला शुरू हुआ हो? ठीक, फिर ये कंट्रोल रहा है दवाइयों पे? ये दवाइयाँ रेगुलर लेती थी? ओके, इनकी शादी को कितना अर्सा हो गया? इनके शोहर कोऑपरेटिव हैं इनके साथ? ठीक है, और ये हमल इनका, अच्छा इनके शोहर का कोऑपरेटिव है? इन्होंने हमल के दौरान जो दवाइयाँ छोड़ी हैं, इनकी तबीयत ख़राब होना कब से शुरू हुई है और दवाई क्यों छोड़ी है? रीज़न पूछें क्यों छोड़ी है? हमल से पहले अपने डॉक्टर को इन्होंने चेक करवाया था और हमल की इजाज़त ली थी? ठीक है, अभी इनको ये मसला कब से है, ये हालत कब से है? हमल खुद ब खुद हुआ था या इलाज से हुआ था? जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट्स गुड। और हमल के दौरान तो कोई मसला नहीं हुआ, वरना उसको कंसाइज कर दें। हमल के दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ हमल को लेके? अच्छा मुझे बताएंगी कि 16 हफ्ते हो गए हैं, आपने इनका अभी तक कोई मुआयना क्यों नहीं करवाया? क्या कोई घर में मसले हैं या शोहर की तरफ से कोई मसला है या मरीज़ खुद नहीं आना चाह रही थी? ठीक है, अच्छा इनको इसके अलावा कोई मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई ऑपरेशन हुआ हो, किसी दवाई से एलर्जी? अच्छा मैं पूछना चाहूँगी माज़रत के साथ, ये कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं करती या अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेती या स्मोकिंग? ठीक है। अच्छा सारा, अभी मैं आपकी बहन का मेंटल हेल्थ टीम के साथ मिलकर मुआयना करना चाहूँगी। ठीक है, इनका कद वज़न का तनासुब, ब्लड प्रेशर, नब्ज़ की रफ्तार, आँखों में पिलाहट देखना चाहूँगी और इनके टेस्ट भेजूँगी, खून और पेशाब के। डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग जो कि हम बच्चे के लिए करते हैं उसके टेस्ट भी भेजूँगी और अल्ट्रासाउंड भी। देखें मैं टेम्पलेट वही फॉलो कर रही हूँ। हिस्ट्री ली मैंने उसकी बहन से, अब मैं उसको कह रही हूँ मैं उसका मुआयना करूँगी। एग्जामिनेशन हो गया विद मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम को मैंने नहीं इन्वॉल्व किया तो पेशेंट तो मुझे मार देगी। मेंटल हेल्थ टीम उसकी कंडीशन सही करेगी और मैं एग्जामिनेशन करूँगी और फिर मैं आगे इन्वेस्टिगेशन पे। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर से नहीं मांगनी, मैंने कहना है मैं इनके कुछ खून पेशाब के, क्योंकि बुकिंग विजिट है, टेस्ट भेजूँगी, अल्ट्रासाउंड होगा इनका और डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग विच विल बी क्वाड्रुपल टेस्ट। डोंट यूज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी विद द लेमैन, नंबर कटेंगे। सो नेक्स्ट इज़, अच्छा सारा, जैसा कि मैंने आपसे सवालात किए और आपके मरीज़ का मुआयना भी कर लिया, मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी बहन का जो हमल है वो एक हाई रिस्क हमल है। इनको अभी हमने दाखिल कर लिया है और इनका हमल थ्रू आउट जो है बड़े अस्पताल में ही मॉनिटर होगा। जब इनकी अभी मायरीन की टीम बैठेंगी जिसमें हमारी सीनियर डॉक्टर, पेरीनेटल हेल्थ टीम और साइकियाट्रिस्ट होंगे। जब इनकी हालत बेहतर हो जाएगी तो हम इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ रही? आपको मालूम है इनको क्या हुआ है? ये साइकोसिस है जिसको हम आम ज़बान में पागलपन कहते हैं। आपकी मरीज़ा को पहले, हाँ इसको बताना तो है ना कि हुआ क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर पहले से था, दवाई छोड़ने की वजह से उसकी नोयत और शिद्दत बदल गई और ये साइकोसिस में बदल गया जिसका मतलब है पागलपन। आप परेशान ना हो, हम मायरीन की टीम मिलकर इनका इलाज करेंगे। ठीक है, और हतमी कोशिश करेंगे कि एक सेहतमंद बच्चे की ये माँ बन सकें। ठीक है, जब ये बेहतर हो जाएंगी हो सकता है कि दौरान इलाज इनको इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत पड़े या फिर डॉक्टर इनकी दवाइयाँ लिथियम दोबारा स्टार्ट करवाएं या फिर कोई और इसकी जगह दवाई शुरू करवाएं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की सूरत में माँ को
माँ और बच्चे को कुछ नुकसान होते हैं जो कि माँ को खुदा ना खास्ता वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, या बच्चे की या फिर दिल के मसले हो सकते हैं, या फिर बच्चे को खुदा ना खास्ता धड़कन ख़राब हो सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये ना होने के बराबर हो। इसके बाद जब आपकी मरीज़ा डिस्चार्ज होगी तो हम इनको वक्तन फ़वक्तन बुलाते रहेंगे। इनका 18 से 22वें हफ्ते पे बड़ा अल्ट्रासाउंड बच्चे की जिस्मानी साख्त और बनावट को देखने के लिए होगा, और उसके साथ ही उसकी एको भी होगी दिल की साख देखने के। 26वें हफ्ते से लेके आगे हम हर 4 हफ्ते बाद बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करेंगे 36वें हफ्ते तक। इसके अलावा इसके साथ साथ हम इनकी लिथियम का लेवल जो लिथियम ये लेंगी, अगर दवाई लेती हैं तो खून में लिथियम का लेवल हर 4 हफ्ते बाद 36वें हफ्ते तक, देन उसके बाद 1 हफ्ते बाद करेंगे जब तक डिलीवर नहीं हो जाती। आप मेरी बात समझ रही हैं हिना? वो क्या नाम था, सारा। और ये सारा इसके बाद 32वें हफ्ते पे जाके पेरीनेटल हम मेंटल हेल्थ टीम के साथ डिसाइड करेंगे कि आया कि आपके मरीज़ को एडमिट करना है या नहीं। इस अमल में इनकी फैमिली भी साथ शरीक होगी। 32 वीक्स पे फैमिली को विद MTT टू डिसाइड द फर्दर मैनेजमेंट। हो सकता है आपके मरीज़ को दाखिल करना पड़े अगर उनकी दौरान हमल उनको ख़तरा हुआ तो। इनको दाखिल करना है या नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें इनको डिलीवरी तक दाखिल रखना पड़ेगा। अच्छा, लिथियम लेने की सूरत में मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ध्यान रखना है कि इनको उल्टी मतली की शिकायत या पेट ख़राब ना हो, या फिर ये इनको कपहाट तारी ना हो। इस सूरत में आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास मुआयने के लिए आएंगी, ठीक है। डिलीवरी से पहले हम इनकी लिथियम बंद करवा देंगे। डॉक्टर आप ये सुबह वाला सिनेरियो अगर आपने लेफ़्ट करना है तो यू कैन लेफ़्ट। डिलीवरी से पहले हम लिथियम बंद करवा देंगे, और दौरान ज़िचकी इनको हम अच्छी दर्द पेन किलर देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इनके अंदर पानी की कमी ना हो। बच्चे की दिल की धड़कन लगातार मॉनिटर होगी, और हमारी कोशिश यही होगी कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाए अगर इनमें कोई ममानियत ना हुई तो। अब मेरी बात समझ रही हैं सारा? ठीक है। इसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद आपको बताती चलें कि 12 घंटे बाद हम इनका लिथियम का लेवल दोबारा देखेंगे, और माहिरीन की टीम के साथ डिसाइड करेंगे, पेरीनेटल हेल्थ टीम के साथ इनका मुआयना होगा, और अगर उन्होंने इनको लिथियम स्टार्ट करवाई तो हम इनको बच्चे को दूध पिलाने से मना करेंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं? अभी ये कुछ मालूमाती किताबचा है, आप इसे पढ़ लें, और कोशिश करें कि इनके हस्बैंड भी साथ आएँ, ठीक है। ये कुछ टेस्ट हैं खून पेशाब के, ये आप ले जाएं, और अल्ट्रासाउंड का भी हम अरेंजमेंट करा रहे हैं। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन गर्ल्स? What is the lithium toxicity? Madam, the level above 1.2 millimole per liter is called lithium toxicity. The patient can present with abdominal cramps, diarrhea, nausea, vomiting, and neuromuscular symptoms like dystonia, hyperreflexia, ataxia, and cardiac dysarrhythmias, which is very rare. Okay, what is the most common ECG finding with toxicity? With lithium toxicity? Yes, Dr. Parivish, very good. T-wave flattening. So NICE guideline says कि lithium should not be offered to a patient which is planning for pregnancy or she is antenatal. T-wave flattening. Okay, if the patient has increased risk of relapse if lithium is stopped abruptly. Psychiatric referral is necessary if female wish to stop in first trimester and restart in second trimester. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं नाइस वाले कि बेहतर है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बंद करवा के सेकेंड ट्राइमेस्टर में विद साइकेट्रिक टीम के साथ आप ये करें।
or you can continue throughout pregnancy if increased risk of relapse. और वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर रिलैप्स का रिस्क है तो आप इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी करेंगे। जी कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं देखूं। पोस्टमार्टम साइकोसिस का जो इंसिडेंस है 1/1000। सो रैपिड एंड सडन डिटोरिएशन होती है इन द पेशेंट मेंटल हेल्थ, मोस्टली इन द 2 वीक्स पोस्टमार्टम में आती है पेशेंट। और ज़्यादातर 50% जो इसको सिम्टम्स आते हैं ना वो डे 1 से 3 के दरमियान आ जाते हैं पोस्टमार्टम की बात करें। फीचर्स आपको पता है, ये डेलूजन्स, हेलुसिनेशंस, कभी मूड बहुत एलिवेट एंड कभी डिप्रेशन, और उसका कॉन्शियस लेवल भी डिस्टर्ब्ड होगा। सो आपने कॉन्शियस लेवल जब डिस्टर्ब्ड होते हैं ना, इसमें जीसीएस नहीं देखते हम, इसका हमारे पास मेंटल हेल्थ स्कोरिंग और होती है, जीसीएस नहीं बोलना, जीसीएस न्यूरोलॉजिकल के लिए होती है, सुबह किसी ने बोला था। दीज आर द पोस्टमार्टम साइकोसिस, ठीक हो गया। यानी फर्स्ट 2 वीक्स और मोस्टली 1, 2, 3 डेज में सडन ऑनसेट होता है। और दिस इज़, अगर आपने हॉस्पिटल एडमिशन साइकोसिस में नहीं बोला, यू आर फेल। ओके, पेरीनेटल हेल्थ टीम ज़रूर बोलें। एनी क्वेश्चन?